Today we are going to see the draw command. Hmm. So draw command is available here. You can see the draw command drop down menu. If I click on the draw, you'll find this is it start with the modeling and line, ray, construction, and all these are the draw menus. Okay, this draw menu is also available here. You can see at the left side there is a line and all this. So we'll try to finish this draw menu today. Okay, so we'll try to finish the draw menu today within our 4-hour practical. Okay, so what is the lowest quantity that we can draw is a line. पॉइंट सुद्धा ड्रॉ करू शकतो पण पॉइंट डझंट हॅव एनी डायमेन्शन. आपण पॉइंट पण ड्रॉ करू शकतो. नुसता एक पॉइंट दिला तर तो पॉइंट होऊ शकतो. सो if I start with the simple point, so the first draw command is point. Where is it is? So you can see here. So मी माझी पॉइंटर तिथे मूव्ह केलेला आहे. There is a point command. Okay, but that point command is not important. का important नाही आहे कारण point command ने आपलं कोणती एंटिटी नसते. फक्त point command केव्हा उपयोगाला येते आपल्याला. सपोज आपण एक सर्कल काढलेला आहे आणि त्याचा सेंटर दाखवायचा आहे. At that time only we need a point command. Otherwise point command doesn't have that much meaning in our total different kinds of drawings. त्यामुळे आपण point command is there. We'll see that point command, but we'll start our first command with line command. Okay, so for example we have a simple job. आता एक जॉब घेऊन तो काढायचा प्रयत्न करूया. Draw a rectangle having 100 mm by 100 mm dimension. So this is the task. Okay, so draw a rectangle having 100 mm by 100 mm. Okay, so here we are having our draw command. How we can draw? By using line. So you write there line command. For the line command we can go by different way. First thing is you can go with a draw menu. If I say draw, here is the line. Draw line. So this is first. We can draw. We can start our line command by clicking on draw menu dash line. Second thing we can do is already we have this menu bar. Sorry, here we are having that icons. We can click on this icon of line and we can start line command. Or we can go in front of command prompt. If you can see command, I will click here. So here also we can type LINE. इथे मी line type केलंय. By this way also you can start your line. Now here our aim is to draw first a line of our rectangle. 100 by 100 चा rectangle काढायचा आपल्याला. This is the first task in front of us. Problem काय आहे? 100 mm by 100 mm चा rectangle काढायचा. For that we need 4 lines. 4 line लागतील. Okay. So let us have the line command. So I am going to start out. Simple way is we can click here. सगळ्यात सोपी गोष्ट कोणती आहे? इथे क्लिक करायचं. Now if I click on this particular line icon, what will be the changes? What is going to ask? आता इथे command prompt च्या समोर काही नाही आहे. Now I will click on line command. Once I click on the line command, in front of the command you can see line specify first point. So we have to specify the first point. How to specify point? Now आपल्याला याला जर पॉइंट द्यायचे तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे देता येऊ शकतात. यू कॅन हॅव अ मॅन्युअल इनपुट. म्हणजे इथे आपण कीबोर्डवर आपण आपल्या कीबोर्डवर 100,100 असं स्टार्ट करू शकतो. और यू कॅन डायरेक्टली क्लिक anywhere on this particular drawing area. So we go with first with simple way. आपण डायरेक्ट इथे ड्रॉ करण्यासाठी कुठेतरी या पूर्ण याच्यावर कुठेतरी क्लिक करणार आहोत. सो दॅट इज द सर आवाज क्लिअर नाही असत तुमचा.
आवाज मध्ये मध्ये येत नाहीये? आवाज खूप कमी येत आहे सर. स्लो एकदम कमी आवाज. Okay, now I have moved my pointer to the desired position. आपल्याला इथे desired position वर तो pointer मी move केलेला आहे. ठीक आहे, pointer move केला आहे. Now this is our first point. Suppose हा पहिला point आहे, तर मी इथे click करतो. Okay, so I will click here. Once I click, command prompt ला जर पाहिलं आपण तर specify next point. Specify next point. Okay, आता आपल्याला 100 by 100 चा आपल्याला रेक्टँगल काढायचा आहे. सो वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट हा हॉरिझॉन्टल लाईन वर असू शकतो. ओके, नाव आय विल मूव माय पॉइंटर हॉरिझॉन्टली. यू कॅन listen, you can see first, after that I will explain. ठीक आहे. इथे मी काय केलं की माझा माऊस हा हॉरिझॉन्टली असा मूव्ह केला. आता इथे आम्ही क्लिक केलं नाहीये, इथे मी क्लिक केलं नाही, कारण क्लिक केलं तर काय होईल, तो पॉइंट सिलेक्ट होईल. आपल्याला एक्झॅक्ट 100 पाहिजे. ठीक आहे. सो व्हॉट आय विल डू नाव, आय विल टेक सम मॅन्युअल इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड. आता मी इथे काय करणार आहे, 100 असं टाईप करतोय. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट मी काय केलं, पहिल्या पॉइंटच्या नंतर माऊस मूव्ह केला आणि तिथेच ठेवून दिला हॉरिझॉन्टल लाईन तिथे, आणि 100 असं टाईप केलं. आफ्टर दॅट आय विल प्रेस एंटर की. एंटर की प्रेस केल्याबरोबर काय होतं पाहूया. नाउ वन्स आय क्लिक ऑन एंटर की, नाउ इफ आय मूव्ह आवर माऊस, माऊस मूव्ह करतोय पाहता, एक लाईन आलेली दिसते तुम्हाला. The line is of 100. So from first point to 100 mm ची आपण लाईन मारलेली. Got it? Now I want vertical line of 100. 100 by 100 चा आपल्याला स्क्वेअर काढायचं तर vertical line आहे. Okay. So I will try to go for vertical line. आता पहा, मी आता vertical line ला मूव्ह करतोय. आता इथे तुमच्या लक्षात आलंय की आय कॅनॉट कॉन्सन्ट्रेट. मी इथे सरळ लाईन घ्यायचा प्रयत्न करतोय पण येत नाहीये, कारण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो व्हॉट वी कॅन डू, मग याच्यासाठी काय करावं लागेल. सो देर इज अ, इफ यू जस्ट सी ऍट द बॉटम, बॉटम साइडला तिथे आपल्याला दिसतं की खालच्या बाजूला स्नॅप, ग्रीड, ऑर्थो, पोलार, ओएस स्नॅप, ओ ट्रॅक या प्रकारचे ऑप्शन दिसत आहेत. नाउ इफ आय वॉन्ट टू ड्रॉ एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल और व्हर्टिकल, वी मस्ट क्लिक ऑन ऑर्थो ऑन. ठीक आहे, ऑर्थो नावाचं जे आहे ORTHO, त्याच्यावर जर क्लिक केलं तर मला हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल लाईन इझिली काढता येतात. ओके, व्हॉट इज द ऑर्थो नाव, यू कॅन सी. आता मी पुन्हा एकदा माउस पॉइंटर मूव्ह करून दाखवतो आणि त्याच्यानंतर ऑर्थो ऑन करून दाखवतो. ओके, so my pointer is on ortho now. I am going to click that. Again I am going to move up. आता मी पुन्हा एकदा माउस पॉइंटर मूव्ह करतोय. Now you can see. आता पहा, आता मला कुठल्याही प्रकारचे कॅल्क्युलेशन करायची गरज पडली नाही. डायरेक्ट आय गॉट व्हर्टिकल लाईन, कारण मी ऑर्थो ऑन केले. ऑर्थो ऑन केल्यामुळे मला हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल लाईन करण्यासाठी कुठलाही प्रॉब्लेम येणार नाही. पण आता जी जर पोझिशन पाहिली तुम्ही तर ऑर्थो 119.5 अँड अँगल इज 90 डिग्री असं दिसतंय. आपल्याला 119 पाहिजे नाही, आपल्याला पाहिजे 100. सो आता आपण इथं मॅन्युअल इनपुट करूया. मी तिथे माउस पॉइंटर तिथेच ठेवतोय अँड आय विल पुट 100 अँड एंटर की मारतोय. नाव 100 टाइप केलं मी, एंटर. Okay, so here now we got
two lines. One is 100 horizontal line, one is 100 vertical line. Now I want rectangle. Rectangle असल्यामुळे मला left side pointer न्यावं लागेल. So I'll move that pointer to left side. Now you can see, आता इथे पाहू शकता तुम्ही फक्त हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल एवढंच आपल्याला मूव्ह करता यायला लागले. इन्क्लाइन लाईन मूव्ह करता येत नाहीये. ओके, हे कशामुळे होतंय? कारण आपण ते ऑर्थो जे आहे हे क्लिक केलंय. ऑर्थो हा जो ऑप्शन आहे तो क्लिक केल्यामुळे फक्त हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकलच ड्रॉ करता येते. इन्क्लाइन लाईन ड्रॉ नाही करता येणार आपल्याला. ठीक आहे. सो अगेन आय विल गो फॉर 100 इनपुट करेन. 100 इनपुट करून मी इथे एंटर केलं. सो लास्ट वन इज एंड पॉइंट. सो ऑब्विसली एंड पॉइंट हा पहिल्या पॉइंटलाच असायला पाहिजे. सो इथे मी so this is last one. I will click there so that our rectangle is complete. Once I click there, I must press enter key. Enter key दाबून ती command संपवून टाका. Now I'll move the pointer to one side. So this is the first drawing. हे पहिलं ड्रॉइंग आपण लाईन ही कमांड वापरून आणि त्याला ऑर्थो हे ऍडिशनल घेऊन काढलेला आहे. 100 बाय 100 चा रेक्टँगल. ओके, 100 बाय 100 चा रेक्टँगल काढलेला आहे. सो हिअर आय वॉन्ट डायगोनल्स ऑफ दिस. आता या रेक्टँगलचे डायगोनल पाहिजेत आपल्याला. सो इफ आय वॉन्ट टू ड्रॉ डायगोनल्स आर इन्क्लाइन लाईन्स. ते इन्क्लाइन लाईन्स आहेत. आता जर आपण ऑर्थो ऑन ठेवला आणि डायगोनल काढायचा प्रयत्न केला तर ते येणार नाही. वाय? बिकॉज दिस इज द लाईन. दिस इज द लाईन विच इज इन्क्लाइन लाईन. आणि इन्क्लाइन लाईन ही ऑर्थो ऑन असताना ड्रॉ करता येणार नाही. त्यासाठी आपल्याला ऑर्थो ऑफ करावं लागेल. ऑर्थो ऑफ करायचे मीन्स यू हॅव टू गो ऍट द बॉटम साइड. ऑर्थोच्या तिथे क्लिक करा, ते ऑफ होऊन जाईल. क्लिअर? सो फर्स्ट विल ट्राय. आपण ट्राय करूया. सो फॉर दॅट अगेन आय विल गो फॉर लाईन कमांड. लाईन कमांड वर जाऊन क्लिक करेल. क्लिक केल्यानंतर आय विल सिलेक्ट द पॉइंट्स आणि सिलेक्ट केल्यानंतर आपण पहिल्यांदा पाहूया ड्रॉ करता येते की नाही. त्याच्यानंतर मग ऑर्थो ऑफ करून मग ड्रॉ करूया. ओके, सो आय विल गो फॉर अगेन लाईन कमांड. लाईन कमांड वर क्लिक करतोय मी. आपण पुन्हा एकदा लाईन कमांडच्या तिथे पॉइंटर नेला. Now I have selected line. Okay, so specify the first point. First point जो एक कुठलाही एक कॉर्नर घ्या. डायगोनल काढायचे. क्रॉस मधले डायगोनल I want. So this is one end point. आपण end point to end point जोडून डायगोनल काढायचा प्रयत्न करूया. So I'll click here as a starting point. First point is this. Okay, I have selected first point. आता आपल्याला दुसरा पॉइंट घ्यायचा आहे. दुसरा सेकंड पॉइंट इज कॉर्नर. ओके, आता इथे तुम्हाला लक्षात येते की इथे एंड पॉइंट असं लिहिलेलं दिसतं बघा. ओके, आणि येलो कलरच्या छोट्या तिथे स्क्वेअर पण येतोय. नाउ आय विल ट्राय टू मूव्ह टू द सेकंड पॉइंट. बघा आता ह्याला फक्त हॉरिझॉन्टल. हिअर आय कॅनॉट एबल टू ड्रॉ. वाय? बिकॉज ऑर्थो इज ऑन. ऑर्थो इज ऑन, दॅट्स वाय वी कॅनॉट एबल टू ड्रॉ द इन्क्लाइन लाईन. ऑर्थो ऑन असल्यामुळे इन्क्लाइन लाईन काढता येत नाही. सो दॅट्स वाय आय विल मेक अ ऑर्थो ऑफ. सो ऑर्थो ऑफ करण्यासाठी आय विल गो फॉर ऑर्थो. दिस इज ऑर्थो. Click here. The ortho is off now. Once the ortho is off, I can able to draw the line at any angle now. This completed diagonal. Okay, so I'll press enter key. So this completes one diagonal. Now you can draw any diagonal. Okay, you can draw one more times diagonal. I will show how to draw that. Just you see the procedure.
Okay, select one point, select another point and press enter key. That completes one more times line command. Okay, आता याच्यामध्ये आपण जेव्हा त्या ऑब्जेक्टच्या जवळ जाऊ लागलो त्यावेळेस ते लगेचच आपल्याला तो एंड पॉइंट, मिड पॉइंट असं दाखवतो. हे कशामुळे दाखवत आहे? कारण अगेन ऑर्थोच्या बाजूला तुम्हाला पोलार आणि त्याच्या बाजूला ओएस स्नॅप हे बटन दिसतं. इफ आय मेक ओएस स्नॅप ऑफ तर तुम्हाला ते दिसणार नाही. ओके, सो लेट अस सी दॅट की आपण एक सिंपल लाईन काढायचा प्रयत्न करू. अँड इफ आय मेक ओएस स्नॅप ऑन तर ते चौकोन जे येत होते येलो साइडचे ते येणार नाही. आय विल शो दॅट. ठीक आहे. सो अगेन आय विल ट्राय टू ड्रॉ वन मोर टाइम्स लाईन कमांड. एका पॉइंट पासून लाईन कमांड काढून ऑर्थोचा ओएस स्नॅपचा कसा फरक पडतो ऑर्थोचा तर आपण पाहिला. ओएस स्नॅप, व्हॉट इज ओएस स्नॅप? ओएस स्नॅपचा काय परिणाम होतो तो पहा. सो व्हॉट विल हॅपन टू दॅट पर्टिक्युलर येलो कॉर्नर्स एंड पॉइंट दाखवत होता ना, ते एंड पॉइंट दाखवणार नाही तुम्ही ओएस स्नॅप ऑफ करून टाकलं तर. ओके, सो लेट अस सी. अगेन आय विल टेक लाईन कमांड. सो इट शोज एंड पॉइंट. एंड पॉइंट दाखवत आहे. आता मी ओएस स्नॅप ऑफ करतो. त्यासाठी आपल्याला खाली जावं लागेल आणि ओएस स्नॅप ऑफ ऑफ करून टाकावं लागेल. ऑफ करायचं म्हणजे जस्ट यू क्लिक ऑन द ओएस स्नॅप, इट विल गेट ऑफ. तसं ऑर्थोला आता ऑफ आहे, तसंच ओएस स्नॅपला पण क्लिक करायचं, ऑफ होऊन जाणार ते. सो हिअर इज ओएस स्नॅप. ओएस स्नॅप तिथे नेलंय मी. Now OS snap is off. Now again if I go and try to find the end point आता ते दाखवणार नाही. Just check out this. Okay, so there is no any end point now. ते जे येत होतं एंड पॉइंट ते येत नाहीये. कारण काय येत नाहीये? कारण ऑब्जेक्ट स्नॅपिंग, ओएस स्नॅप म्हणजे काय? ऑब्जेक्ट स्नॅपिंग इज ऑफ नाउ. So always keep object snapping on. Object snapping हे नेहमी on ठेवायचं आहे. So again I will take that object snapping on. Okay, so now you can have end point. लक्षात ऑब्जेक्ट स्नॅपिंग आणि ऑर्थो. लाईन कमांड पाहताना आपण अजून दोन कमांड पाहिल्या. कोणत्या? ऑर्थो. ऑर्थो काय करतं? फक्त हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल लाईन मारतं, इन्क्लाइन लाईन मारू शकत नाही. सो व्हॉट इज यूज ऑफ ऑर्थो कमांड? ऑर्थो कमांड इफ इट इज ऑन तर आपल्याला हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल लाईन पटापट मारता येतात. ओके, सो सेकंड थिंग इज स्नॅपिंग. ऑब्जेक्ट स्नॅप जर ऑफ करून टाकलं तर आपल्याला एंड पॉइंट लगेचच कळणार नाही. यू कॅन हॅव एनी पॉइंट. आता समजा जर आपल्याला मिडल लाईन पाहिजे असेल, मिडल लाईन, सेंटर पॉइंट, सो ऑल वी कॅन डू विथ ऑब्जेक्ट स्नॅपिंग. ऑब्जेक्ट स्नॅपिंग मध्ये तुम्हाला वेगवेगळे पॉइंट्स दाखवतात. सो आय विल शो दॅट ऑल द पॉइंट्स. जस्ट व्हिज्युअलाइज दॅट. एंड पॉइंट तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतोय, तसे बाकीचे पॉइंट मी दाखवतो. ओके, आता आपल्याला इथून जर समजा 50 डिस्टन्स वरून जर एखादी लाईन काढायची, सो इट कॅन बी पॉसिबल बिकॉज हिअर मिड पॉइंट इज डायरेक्टली शोन. इथे मिड पॉइंट असा जर आपल्याकडे असेल तर आपल्याला एक लाईन अशी मारता येऊ शकते. सो दिस इज द फर्स्ट step how to draw a line. Okay, so this is first line command. So here I have drawn haphazardal. कसं आहे? विदाउट डायमेन्शन कटाकट नुसतेच लाईन काढून ठेवल्या. ठीक आहे, या लाईनला कुठले डायमेन्शन मी मोजले नाहीत. कुठल्याही प्रकारचं इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग म्हणता येणार नाही. इट इज नॉट इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग. वाय? बिकॉज इट डझंट हॅव डायमेन्शन्स अँड ऑल दिस थिंग्स. So this is the way by which you can draw any line. तुम्ही जिथे जिथे क्लिक कराल तिथे तिथे ड्रॉइंग लाईन काढल्या जाऊ शकते. But if you draw such type of lines, how to delete that? बरोबर आहे? How to delete that? So
the best way to delete that is you can click on the object and press delete key. So there is a erase command is also available. Erase command upon modify command मध्ये पाहणार आहोत. Before that, here best way is just click on that object and press delete key. Delete key is also available in our keyboard. Keyboard or delete key available असते. So you click on that particular object and press delete. Second thing is you can have a window. How we can have a window? Window कशी काढायची? तर एका कुठल्या त्या कॉर्नरला क्लिक करा आणि माउस ड्रॅग करा. Whatever inside that dragged window that gets selected. I'll show both way. आता तुम्हाला पहिल्यांदा मी एक एक क्लिक करून दाखवेन, डिलीट करून दाखवेल आणि विंडो पण घेऊन दाखवेन. ओके, सो जस्ट लुक एट नाउ. So here I have selected 3 lines. I will press delete key. Delete key इथे प्रेस केली तुम्हाला दिसणार नाही. I'll press a delete key. Now if I press a delete key, then the drawing is get deleted. So by this way you can delete drawing. सर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बाद भी डिलीट ऑप्शन आता ना? Yes, माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करने के बाद भी डिलीट ऑप्शन आता है. ओके, और या फिर डिलीट जो अपना कीबोर्ड के ऊपर डिलीट बटन है उसको भी प्रेस कर सकते हैं. By any way you can delete that. Okay, so if I press right click, here also you are having erase command. You can see the erase command. ठीक है, ऐसे भी करके आप इरेज कर सकते हो. इरेज कमांड जैसा इरेजर रहता है वैसे टाइप का एक इरेज कमांड यहाँ पे है. यू कैन सिलेक्ट दैट. सो मूव टू द इरेज एंड क्लिक हियर. ठीक है, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट. हर एक बार उसको राइट क्लिक दबाने से अच्छा है just to select that and press delete key, because delete key is everywhere on the every keyboard. कीबोर्ड के ऊपर delete key रहता ही है. ठीक है, उसको राइट क्लिक करो, सिलेक्ट करो. इट इज नॉट दैट मच इजी, इसीलिए उसको डिलीट कर सकते हैं. दूसरा जो है डिलीट बाय सिलेक्शन. हाउ टू डिलीट बाय सिलेक्शन, दैट आई विल शो. मैंने क्या किया, एक कॉर्नर के ऊपर क्लिक किया, ड्रैग कर दिया माउस. अब ड्रैग करने के बाद ये ब्लू रेक्टेंगल आ गया. इन व्हाटएवर इनसाइड दिस ब्लू रेक्टेंगल इट इज गेट सिलेक्टेड. मैं दूसरे कॉर्नर के ऊपर क्लिक करता हूं, सब कुछ सिलेक्ट हो गया. सिर्फ 2 लाइंस नहीं सिलेक्ट हुई क्योंकि वो थोड़ा से विंडो के बाहर थे. आई विल प्रेस डिलीट की, इट इज गेट सिलेक्टेड. सब कुछ डिलीट हो जाएगा. अगेन यू कैन सिलेक्ट दोज लाइंस आल्सो बाय विंडो. So this is about the erase command. Erase command जो बोलते हैं, that erase command is there in the modify. Modify में पहली command erase है, वो हम देखने वाले हैं. ठीक है. So this is about the line command and erase command. The second जो हम देखने वाले हैं that is ray command. जैसे कि हमको पता है कि हमने कुछ ड्रॉ किया तो उसके ऊपर हमको एक परपेंडिकुलर या फिर प्रोजेक्शन जो रहते हैं वो प्रोजेक्शन डालने पड़ते हैं. फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, टॉप व्यू ड्रॉ करना है, साइड व्यू ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते हैं, लाइन पैरेलल लाइंस के प्रोजेक्शंस लेते हैं. सो सेम थिंग वी कैन यूज हियर एज अ रे कमांड. तो लाइन कमांड के बाद सेकंड जो कमांड है that is ray command. Ray command is not that much important because we can have OS snapping. OS snapping जब है तो उसमें ray command की जरूरत नहीं पड़ती है. समझो हमारा ड्राइंग छोटा है तो if your drawing is
स्मॉल देन यू नीड नॉट वरी अबाउट द रे कमांड। लेकिन बहुत बड़ा ड्राइंग है आपका, A0 साइज का ड्राइंग है और यू नीड अ प्रोजेक्शन, एट दैट टाइम यू नीड अ रे कमांड। सो लाइन के बाद में जो और एक लाइन वहां पे दिखती है, दैट इज रे कमांड। सो हाउ टू टेक अ रे कमांड, फॉर एग्जांपल आई विल फर्स्ट ड्रॉ वन लाइन, एक लाइन ड्रॉ करता हूं और उससे प्रोजेक्शन मार के दिखाता हूं आपको। ओके, सो आई विल फर्स्ट गो फॉर लाइन कमांड, आई विल ड्रॉ वन लाइन एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अ प्रोजेक्शन। ये मैंने ड्रॉ किया है एक लाइन, सिंपल लाइन। और अभी हम क्या करने वाले हैं, उसको प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन मार के देखेंगे। सो दैट इज बाय यूजिंग second command. I'm going to click on ray command now. So this is construction line or ray command. I'll click here on ray command. मैंने एक प्रोजेक्शन मार दिया, इट इज इनफाइनाइट प्रोजेक्शन। जो मैंने प्रोजेक्शन यहाँ पे मार दिया है वो इनफाइनाइट रहेगा आपका, जहां भी ये लाइन में जो जो काम रहेगा दैट वी कैन ड्रॉ। एक बड़ी लाइन खींच दी उसने। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज अ प्रोजेक्शन लाइन। अगेन आई विल रिपीट, ये एंड के ऊपर भी एक प्रोजेक्शन डाल देते हैं। So I have drawn two projections to this line. ठीक है, so this is not that much important. जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि it is a projection lines. Projections जब जब लगता है तब हम projection लेके उसको delete कर सकते हैं, because we should not draw, we should not keep product projection. Projection एकदम faint निकालते हैं. So this is projection drawing. Okay. सर हाँ, जब अपन प्रोजेक्शन यूज करते हैं हम, तब ऑर्थो नहीं यूज कर सकते? yes you can कर सकते हैं। ऑर्थो ऑर्थो ऑन रहेगा तो प्रोजेक्शंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली आएंगे। हाँ, ठीक है ना, कि इंक्लाइन प्रोजेक्शन नहीं आएंगे। क्लियर? सो दिस इज प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन इज only importance if your drawing is very very large, otherwise OSNAP command is there, OS tracking command is also I will show. So this is one additional facility given. Okay, so again we'll erase this and we'll go for next command, that is polyline command. So I'm going to erase this. Projection are infinite projection, that's why I need to select that. Window में नहीं आए थे वो। ठीक है, so the next important command, this next third command is important because it is a combination of line, circle and it is a continuous line command. ठीक है, so the next command is polyline. Okay, polyline means continuous line. Okay, polyline is not related with our polytechnic, but it is a continuous line. How to draw a polyline? So we'll go for that. So I'll click on polyline. So before that, what is difference between line and polyline, that also should be clear. So what I will do, first I will draw one simple a drawing with simple line, and after that I will go for polyline. एक simple line से एक object draw करता हूँ यहाँ पे,
और उसको बाजू में रख देते हैं और पॉलीलाइन कमांड लेके पॉलीलाइन से ड्रॉ करते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलीलाइन एंड लाइन कमांड, दैट विल बी क्लियर. ओके, सो फर्स्ट आई विल गो फॉर drawing with simple line. यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया. दिस इज द ट्रायंगल using simple line command. Okay, so this is having 3 lines. 3 लाइन से बनाए. So you can clearly click on each and every line. अलग अलग मैं क्लिक कर सकता हूँ. I will show that. This is first line, second line, third line. Okay, so 3 different lines are there. Clear 3 लाइन है, उसको अलग अलग डिलीट कर सकते हैं. Everything is possible. Now I'll go for polyline command. Okay, so deselect करने के लिए मैंने क्या करना है, escape की दाबना है. यहाँ पे मैं escape की प्रेस करता हूँ, जो सिलेक्शन है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, so this is simple line command. I will go for polyline. Polyline command is possible under draw menu bar as well as here. तीसरी command जो है, I will show that polyline command. So this is polyline command. We'll start that polyline command. So I'll draw one more times triangle and I will show the difference between line and polyline command. So again I have drawn triangle using polyline command. Polyline command करके मैंने एक बार triangle बनाया. Now I will try to select that. इसको select करके देखते हैं what is the difference. Now it is selected total. मैंने उसको क्लिक करने के बाद वो क्या हो गया, पूरा सिलेक्ट हो गया. So that is the main difference. हम जब कंटिन्यूस एखादा असेंबली ड्राइंग ड्रॉ करते हैं या फिर हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्लोज करना है. ओके, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ओल्ड हैम कपलिंग का सर्कल बनाना है. उसके अंदर एक सर्कल है, उसको एक फ्लैंजेस निकालना है, उसका एक हब है. सो सच टाइप ऑफ थिंग्स व्हिच आर कंटिन्यूअस. ओके, उसका कंटिन्यूअस जब निकालते हैं, एट दैट टाइम यू नीड अ कंटिन्यूअस लाइन. उसमें अलग अलग लाइन के टुकड़े जोड़ देंगे. सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सेम हम जब मॉडिफाई कमांड में जब जाते हैं तो उसका और ज्यादा एप्लीकेशन मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि व्हाई इट इज नेसेसरी, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे. वेयर हमने जो पहला ट्रायंगल निकाला था वो अलग अलग 3 लाइन से बना है. सो दैट इज वन एप्लीकेशन ऑफ पॉलीलाइन. पॉलीलाइन का ये एक एप्लीकेशन. नाउ पॉलीलाइन कैन बी अ कंटिन्यूअस लाइन एंड आर्क कॉम्बिनेशन. लाइन एंड आर्क का एक कॉम्बिनेशन भी पॉलीलाइन से बना सकते हैं. सो हाउ टू गो फॉर दैट, सो आई विल शो दैट. So I will delete this and I will go for combination of line and circle or arc by using polyline. So इसको डिलीट करते हैं और फिर से polyline कमांड में सिलेक्ट करूंगा. So I have started here with polyline command. जहां जहां मुझे अभी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन होना है वहां वहां मैं ऑर्थो ऑन करूंगा. लेकिन आपको ऑर्थो ऑन करने के बाद समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं यहाँ पे ऑर्थो का शॉर्टकट की यूज करने वाला हूँ. और ऑर्थो का शॉर्टकट की है F8. इफ आई प्रेस F8, फंक्शन कीज मालूम है आपको, F1, F2, F3. सो उसमें F8 दबाता हूँ तो ऑर्थो ऑन हो जाता है और F8 फिर से दबाता हूँ तो ऑर्थो ऑफ हो जाता है. सो आई कैन यूज दैट शॉर्टकट डायरेक्टली. फिर से ऑर्थो के पास आके उसको क्लिक करने की जरूरत नहीं. आई विल
आई गिव शॉर्टकट ऑफ ऑल। आपको ऑब्जेक्ट स्नैपिंग बंद करना है, ऑन करना है, तो वी कैन हैव F9 कमांड। सो ऐसे अलग अलग शॉर्टकट कीज में बताते रहूंगा। सो आई विल गो फॉर आर्थो कमांड साइमल्टेनियसली। जैसे कि मैंने अभी पॉलीलाइन कमांड लिया है, आई विल गो फॉर अ सिंपल ड्राइंग। देखते हैं ड्राइंग निकालते हैं। सो आई विल स्टार्ट माय ड्राइंग। ठीक है, मैं ड्राइंग स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट आया है, सो आई विल गो फॉर ड्राइंग। जब मुझे सर्कल निकालना है तब मैं आपको फिर से स्टॉप करके बताऊंगा। ओके, अभी मैंने यहाँ पे एक लाइन कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन ड्रॉ किया। अभी मुझे यहाँ पे सर्कल होना है। ठीक है, सो सर्कल मीन्स हाफ सर्कल और आर्क। सो हियर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और आर्क, क्लोज, हाफ विड्थ, लेंथ, अनडू विड्थ, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आए हैं। ओके, सो उसमें से हम अब आज आर्क देखेंगे। जब भी हमें हाफ विड्थ, लेंथ और विड्थ का जब काम पड़ेगा वो भी मैं आपको समझा के दूंगा। फर्स्ट आई विल गो फॉर आर्क कमांड। ओके, सो हाफ विड्थ, लेंथ एंड विड्थ उसका जो है दैट आर अगेन एडवांस एप्लीकेशन, वो भी मैं बताते जाऊंगा वेरेवर आई गॉट अ चांस। जैसे जैसा संदर्भ आएगा, संदर्भ के हिसाब से मैं बताते जाऊंगा। फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ लाइन का और आर्क का। सो आई विल गो फॉर आर्क। सो आर्क स्टार्ट विथ ए स्टार्ट होता है, इसीलिए ए प्रेस करके एंटर की दबाऊंगा। ए प्रेस करके एंटर की दबाने के बाद क्या चेंजेस होते हैं देखेंगे। आई विल गो फॉर ए। मैंने ए प्रेस करके एंटर की दबा दिया है। नाउ विल सी व्हाट हैपेंड टू आवर लाइन। अभी क्या आ गया, सो हियर ए जब मैंने दबाया तो उसको मालूम पड़ गया कि नाउ हमने क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। तो आर्क ड्रॉ करना है, इसका मतलब है वो उसने लाइन ड्रॉ करना छोड़ दिया, उसने डायरेक्ट आर्क ड्रॉ करना चालू कर दिया। ठीक है, अगेन इफ आई ट्राई वन मोर, ओके, तो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, वो आर्क ही ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा है। नाउ आई डोंट वांट आर्क, हो गया, बस हो गया। एक आर्क आर्क था, वो आर्क हमने कंप्लीट कर दिया। अभी मुझे फिर से लाइन होना है। सो लाइन तो स्टार्ट होती है एल से। सो अगेन आई विल प्रेस एल एंड आई विल प्रेस एंटर की। फिर से लाइन आ गई। ठीक है, अभी ऊपर का और नीचे का सेम आना चाहिए, क्योंकि हमने तो कुछ डायमेंशन लिए नहीं थे, ऐसे ही स्टार्ट किया था। अभी हमें क्या करना है, जैसा ऊपर का ड्राइंग है वैसे नीचे होना चाहिए। आ गया, देखो मैं और तो ऑन करता हूँ, कट इट। जैसा ऊपर का था वैसा नीचे आना चालू हो गया, बिकॉज ओएस स्नैप ऑन है, ऑर्थो ऑन है, इसीलिए हमें ये ड्रॉ कर सकते हैं हम। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि उसका रेफरेंस वहां पे आया था लेकिन यहाँ पे नहीं आया। सो व्हाट वी कैन डू, सो देयर इज अ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, वो ट्रैक जो है वो भी ऑन कर देते हैं। सो ओएस स्नैप तो ऑन है, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी ऑन कर दिया। नाउ यू कैन सी, आगे सो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बता रहे हो। सो आई विल क्लिक हियर।
तो हमने ये जो निकाला है तो उसमें कौन से कमांड यूज किए देखो। फर्स्ट थिंग इज पॉलीलाइन। पॉलीलाइन से हमने ड्रॉ करना सीखा कि हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल आने के लिए ऑर्थो ऑन किया, इसलिए एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ गया। जब पॉलीलाइन में हमको आर्क ड्रॉ करना था तो उसमें हमने क्या किया, ए टाइप किया और एंटर किया तो आर्क निकालना चालू हो गया। जब हमें फिर से लाइन बनाना था, अगेन आई हैव प्रेस एल, तो ए एल करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं। आर्क से लेंथ जा सकते हैं, लाइन से आर्क जा सकते हैं। यू कैन हैव कॉम्बिनेशंस। सेकंड दूसरी बात क्या हो रही थी यहाँ पे कि ऊपर का और नीचे का सेम आना चाहिए। ऊपर का और नीचे का सेम आना चाहिए, तो इसके लिए हमें ओएस ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, ओएस स्नैप तो ऑन होता था ही, और एक हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ऊपर का और नीचे का एग्जैक्ट आना चाहिए। हमें एग्जैक्ट आना है तो हमको डायमेंशन ही पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे तो डायमेंशन पता नहीं थे, तो हमने क्या कर दिया, उसको ओ ट्रैक, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी ऑन कर दिया। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑन कर दिया तो हमारा और एक फायदा क्या होगा, ऊपर का जितना था सेम उसको ट्रैक कर दिया उसने। ठीक है, सो दैट इज यूज ऑफ पॉलीलाइन। अभी उसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे एवरीथिंग इज सिंगल ऑब्जेक्ट, वो अलग अलग नहीं दिखाएगा वो। लेट अस क्लिक ऑन दैट सो दैट लेट अस सी। दिख रहा है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट दिखा रहा है वो, क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। उसको समझो डिलीट कर देंगे तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी समझो गलती से हमने उसको डिलीट कर दिया और आपको लगा अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी ये तो डिलीट हो गया। उसको फिर से लाने के लिए कौन सा कमांड है, हम जनरली कौन सा कमांड यूज करते हैं? डिलीट हो गया और फिर से लाना है उसको तो कौन सा कमांड बोलते हैं उसको? अंडू। अंडो सर, कमांड। अंडो। यस, तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, तो ऊपर जाके हम उसको एक एरो मार्क दिख रहा है आपको ब्लैक कलर का, उसको क्लिक कर देंगे, अंडो हो जाएगा। या फिर कंट्रोल दबा के जेड दबा दो, कंट्रोल जेड इज अंडू। ठीक है, यू कैन हैव बोथ वे। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है अंडू, यू कैन क्लिक देयर और यू कैन क्लिक ऑन कंट्रोल जेड, फिर से वो आ जाएगा। सो इट इज वन मोर फैसिलिटी, जैसे कि हम नॉर्मल इसमें करते हैं रीडू और अंडू, सेम थिंग यू कैन डू हियर आल्सो। ठीक है, तो कुछ गलती से डिलीट हो गया तो उसको फिर से अंडू कर दो तो वो आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज पॉलीनॉमियल। अभी हम क्या करेंगे कि उसमें और एक बार पॉलीलाइन कमांड ले लेता हूँ। बहुत बहुत लोगों का शायद ध्यान होगा या नहीं होगा, तो मैंने क्या करता हूँ, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड आर्क, कैसे निकालते हैं देखेंगे। आई विल गो फॉर क्लिकिंग ऑन द पॉलीलाइन और पॉलीलाइन कमांड लेके फिर से हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आई विल गो फॉर दैट। देखो मैंने कैसे अभी रैंडम रैंडम आर्क यल ए यल करके अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन बना दिया। देयर इज अ इंक्लाइन लाइन, ऑर्थो ऑफ कर देंगे तो इंक्लाइन लाइन आ जाएगी, ऑर्थो ऑन रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आ जाएगी। इफ देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस, वो डायमेंशन भी आप डाल सकते हो। ओके, so this is the combination of polyline is a combination of length, line and arc. There is a, you can have a width of that, अब लेकिन width कब लेना है और उसका half width कब लेना है, that we'll see later on। जैसा हमें उसकी जरूरत पड़ेगी
at that time I will show, क्योंकि this is included in the layer command also. तो लेयर कमांड जब हम पढ़ेंगे तो लेयर कमांड के लिए अभी टाइम है. सो अभी पॉलीलाइन कमांड we have seen. In the polyline command we are having a unique single object ले सकते हैं. ये अलग अलग नहीं है. फिर से मैं डिफरेंस बता रहा हूँ. लाइन कमांड में लाइन एक ही है, whereas in polyline command the complete object is a single object. ठीक है. So this is polyline command. Okay, so next to that एक नेक्स्ट कमांड हम लेंगे. उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल मेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, क्योंकि आप उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, पॉलीगॉन कमांड लिखने वाले. तो इसीलिए क्या करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, बिकॉज इट इज अ 2:54 नाउ. एक 5 मिनट का ब्रेक करके फिर से और एक बार आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ, उसके ऊपर से आप फिर से ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक है. ओके ओके